Hey, hi to all of you. Welcome to your own channel, Trade Independent. As I promised you guys that I will give you a one good strategy for a new year, and that is for intraday. So now this is our strategy. What exactly it is, let me tell you. I will explain both things in Hindi and English. Right now, I am starting with English, and after that, I will go with the Hindi. Most probably after 5 minutes or 7 minutes, you will get the Hindi update. So first of all, this strategy is based on Heiken-Ashi and Cambrilla. Okay. Now for Heiken-Ashi, we all know that this is actually trend based candle. If you don't know and how they form, you can go to Google and search its formula. It's very simple. Nothing about that, but this is a trend candle. So what exactly it is this? If you are looking for any kind of bullish candle, then it will look like this. There is a no wick on the lower side. If there is a wick on lower side, then the weakness starts coming in the market. So once you see the market is actually the candle is just like this, it shows that Heiken-Ashi have a good buyers in it. That means market have a buying mood. Similarly, if you are looking for the selling side, you will see the market, a candle like this, and this shows that there is a good seller in the market. Okay, so we don't need any upper wick on this particular candle. If there is a upper wick, then we will say that yes, some weakness is coming. Okay, so this is a normal thing. We know, we just need to understand for the Heiken-Ashi candle. Now our strategy is basically based on doji. Okay, why doji? I am taking this. Doji is basically a halt. Okay, a halt means when there is a equal balance of buyers and sellers. That means when open is equal to close, we will get the doji. Now the main thing is that we know that halt. Many traders, many trainers give the strategy watch doji on Heiken-Ashi. But now I added only one thing in that. Doji is important, but where it should come, that is more important than anything else. So now what we will do, we will just add doji with Cambrilla pivots. Okay. And we will see how exactly the reversals we are capturing or a continuation we are capturing with the help of doji plus Cambrilla. In a 5-minute chart, we will apply this and I will show you how exactly, how beautifully it is working for the trading of intraday. So let me go to the charts. Okay, this is Nifty future chart and see how we will get the trades in that. So today, as it's gap up and very good movement to the upside, but you can see here, the first doji you got almost near to the Cambrilla level. What level it is, we doesn't need that. It's a H5, H4, H3, that doesn't matter to us. The main thing is matter to us that where the doji is placed. If doji is placed almost above this, then mark the high of this doji. Let me zoom out it a little bit more so that you guys can understand. So here you can see this is a candle which I am talking about. This is a candle. So this doji low is just near to our Cambrilla level. So Cambrilla level is 17,365. Maybe this low is somewhere around 368 or 367. So now mark the low of this candle. In fact, below 17,365, we will look for the short trade, and above this high, we are going for buy trade. So in entire day, you got one buy trade somewhere around 17,385, and from there it moved to 17,440. Now there is a lot of dodges, but these dodges are not good for me. For me, the doji is actually near to my Cambrilla level or on Cambrilla level. Let me show you some past example that will give you more clarity. Okay, look here again, this candle near to level,
What is the level? Let me come to the level. Okay. So here you can see 17,184 is the Cambria level, and here is a doji, and doji low is 17,185. So 1 rupee margin, not a big deal. Mark the high and low of this candle. Sorry, let me remove this and just do this for you guys. Okay, and the high and low of this candle. Let me do this. And the low is basically 17,185, which is our level. So you can see very next candle give you a buy at 17,136. Sorry, 17,209. So from there it moved till 17,258. Again, you got a very good opportunity of buying in this particular trade. So now doji position is very important whenever you are trading with Heikin Ashi. Look, on the level of, let me tell you what is the level, 17,276. So mark the high, that is 7281, and low 270. So below 270 it moved down till 17,198. So many trainers talk about Heikin Ashi, but they are not Heikin Ashi doji. They said whenever you see 2 doji, 3 doji, you just start trading. You just start mark the high and low and trade according to that. But no, the main strategy, the main tadka of the strategy is basically you have to see the doji position. If the doji position is near to your levels of Camrila, then you have a double confirmation and just trade according to that. Okay, so this is Nifty chart. If you guys want to see any stock, let me show you some stock. Maybe let me go to Reliance or ICICI Bank. Let's see ICICI Bank. Okay, this is ICICI Bank. Look, on the 29th of November, you can see the doji on the top, this one, and the high of this candle is basically sorry, wait for a while, let me do upside. So here you can see the high is 744.95 and the Cambria level at 745. So short below the low of this, that is 743.45. From 43.45 the first target is 41, and if it is not sustaining, if it is not actually basically taking a reversal from this level, for example, here is also doji, here is also doji, but not able to cross the high of doji. So now your targets will increase and it move down, down, down. Again, here is a doji. So entire day, whenever this stock is starting falling downside, you are getting the dodges, and dodges are giving you a confirmation that we are looking for the downside move only. Okay. So let me see any other trade in okay, so here you can see on 31st of December, again here you can see a doji. The high of this doji is 745.95 and the Cambria level is at 746.20. So here you can go short below 743 again. 740 is first target, which is done. And again you can see a lot series of doji there, but not able to sustain above this. So more downside till 740. Okay, let me go some volatile stock like Dal Bharat. Okay, this is Dalmia Bharat. Let me show you how the market works with the Dalmia Bharat. Okay, so this is doji on the level. Okay, earlier also here. So the highs basically here you can see the highs break at 1862.20 and this high is 64. So your buy trade is triggered, and after that here you have to exit from 1864 to 1856. This is a stop loss of somewhere around 8 rupees. Now here you can see you shorted here with the stop at the 1853 level, and from 1853 it moved down to 1843. So 10 rupees in your pocket, and that last 1841, yeah, same level almost. 1841 is the lowest low of the day. So you got here the opportunity of 12 rupees, 10 to 11 rupees in your pocket,
and you lose 8 rupees on the upper side. The morning you itself you got a buy actually. Here you can see the main work is actually started from there. So this is doji, mark the high, mark the low on the level of 1801. So you have to short below 1801 and buy above 1815. So here you bought at 1815, 1825, and after that it moved to 1837 without any dodgy kind of thing happened on the level. So this is how it is working, and it is working very, very beautifully. You can check, you can just back test. And if you have any query, comment on the YouTube video, and also try to back test first and check the entire strategy, then go for any kind of trade. And let me tell you about my disclaimer. I'm not a SEBI registered analyst, and this video is only for educational purpose. And please consult your financial advisor before taking any position. This channel is not recommending any buy or sell signal on any stock or indices. The same disclaimer is actually in my description of this video also. Please check from there also. चलिए अब मैं जरा हिंदी में समझा दूं फटाफट, नहीं तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो बेसिकली ये जो हम स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है। बैंक निफ्टी पे आपको पहले दिखा देता हूँ कि हमने इसमें करना क्या है। तो ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट मैंने अभी लिया है आपके सामने। आज कोई ट्रेड नहीं बना था बैंक निफ्टी में इसके हिसाब से, लेकिन अभी करना क्या है, हमें हेकेनेशी कैंडल लगानी है। और ये कि बेसिकली एक इंडिकेटर है सीडी कैमरिला ऑल लेवल्स, आप ये सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। आप इस लेवल्स को लगा लीजिएगा। सॉरी, इसको लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ डॉजी को फाइंड आउट करना है कैमरिला के लेवल्स पे। ओके, तो अब हमारा काम कैसे होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए अब हम यहाँ पर आए, ये देखिए कहाँ है डॉजी, बिल्कुल बॉटम पे और लेवल के ऊपर 34,867 के ऊपर। तो 34,867 के नीचे शॉर्ट और इस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाइंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने ये बाइंग स्टार्ट करती तो ये बाइंग थी 34,900 के आसपास। फर्स्ट टारगेट आप अपना ये रखिएगा 35,000 विच इज डन। और उसके बाद भी आप देखिए कहीं पर भी अभी आपको कोई रिवर्सल जैसी चीज नजर नहीं आ रही, वो और ऊपर चला गया बाजार। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो देखिए ये पहले देखिए ये भी एक काइंड ऑफ डॉजी बना हुआ है और लेवल पे ही बना हुआ है। सुबह का जो पैरा कैंडल था और इसका हाई था 35,295। अगर आप इसको 35,295 पे बाय करते तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पर था विच इज 35,365, जो कि आपका डन हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर एक डॉजी बना। अब आपका जो बाइंग बनता है वो 35,375 के ऊपर बनेगा और सेल बनेगा 35,332 के नीचे। तो 35,332 के नीचे अगर आपने शॉर्ट करा तो देखिए अब ये कहां पर आ गया 35,124 और उसके बाद एंड में जाते जाते ये 34,933 तक आ गया। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे ट्रेनर हैं जो कि बोलते हैं जहां आपको 2 डॉजी मिले, 3 डॉजी मिले इसके अंदर है कैनेशी में, तो आप उनके हाई और लो मार्क कर लीजिए और उसके ब्रेकआउट का वेट करिए, ब्रेकडाउन का वेट करिए। नहीं, हमारी स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। हमारी स्ट्रेटेजी में मेन चीज ये है कि आपको डॉजी की पोजीशन जो है वो कैमरिला के साथ ऐड करनी है। आप कैमरिला के साथ जब डॉजी की पोजीशन ऐड करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक अलग सा ही चार्ट दिखने लग जाएगा और आपकी जो ट्रेड्स होंगे वो बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी आपको चांस मिला, पहला ये डॉजी बिल्कुल, उसके बाद ये डॉजी, तो 2 बार आपको चांस मिला। पहले इसने यहाँ शॉर्ट करवाया समवेयर अराउंड, एक मिनट हम वो ले लेते हैं माउस। तो ये देखिए इसका लो है 35,265, तो 35,265 पे आपने शॉर्ट करा होगा। 265 से अगर मैं यहाँ तक देखूं तो ये 35,081 तक आ गया। तो ये आपको बहुत ही आराम से इसने आपको प्रॉफिट कराया है यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसको चार्ट को पूरे ढंग से देखिए, आप एनालिसिस करिए, थोड़ा सा बैक टेस्ट करिए और बैक टेस्ट करने के बाद ही आप इसमें ट्रेड करना स्टार्ट करिएगा। देखिए सुबह भी आपको एक ट्रेड यहाँ पर मिला था सेलिंग का और वो सेलिंग का ट्रेड भी आपको प्रॉफिट देके गया। सिमिलरली आप पीछे जाते जाएंगे, आपको जितना चार्ट्स आप देखेंगे, देखिए ये डॉजी बना, बिल्कुल लेवल पे बना, हाई ब्रेकआउट करा और ये जो आपका कंटिन्यूएशन आया वो कंटिन्यूएशन आपने यहाँ पर कैप्चर कर लिया। ठीक है, ये डॉजी नहीं है, काफी बड़ा कैंडल है तो हम इसको डॉजी नहीं बोलेंगे। ओके, सो नहीं, वही एक डॉजी था उस दिन का, यही डॉजी था, कैमरिला के ऊपर था। इसके लो के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं और हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हैं।
तो ये आपने अगर बाय करा था समवेयर अराउंड 34,840, 840 के ऊपर बाय करा, तो ये देखिए यहाँ से चला गया 35,198, 400 पॉइंट का मूव आपने इमीडिएट पकड़ा जो कि ऊपर की तरफ गया। तो आपको ये हर जगह मिलेगा। देखिए ये जैसे लास्ट में गिर रहा था बाजार, तो यहाँ डॉजी बना और ये बाजार गिरा, यहाँ पर डॉजी बना, ये बाजार गिरा। जितना स्टॉप लॉस ले रहे हैं उतना ही पहला टारगेट रखिएगा, 1:1 रेशियो रखिएगा। और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसका जस्ट अपोजिट साइड या उसके 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे कर लीजिएगा। अगर बैंक निफ्टी में काम कर रहे हो तो 10 पॉइंट, निफ्टी में काम कर रहे हैं 5 पॉइंट, किसी स्टॉक में काम कर रहे हैं, स्टॉक की जो मूवमेंट रहती है उस हिसाब से आप उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिएगा। अब देखिए अभी यहाँ पर हमें सुबह सुबह डॉजी मिला, पहला लेवल पे ही मिला। आप इसके लो के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, पर देखिए लो के बिल्कुल ही नीचे आपको दूसरा लेवल मिल रहा है, तो आपका जो एग्जैक्ट शॉर्ट बनेगा 35,050 के नीचे बनेगा। मतलब इस कैंडल पे आप इसको शॉर्ट करिए। तो इस कैंडल पे अगर आपने शॉर्ट करा, 35,017 का क्लोजिंग है। क्लोजिंग कुछ और भी हो सकता है क्योंकि ये चार्ट्स अलग अलग रहते हैं। मतलब कैंडल पे कुछ और प्राइस आ रहा होगा और हैकेनेशी पे कुछ और आ रहा होगा, तो आप उसका टेंशन मत लीजिएगा। आपने इस कैंडल पे शॉर्ट करा 35,017 और उसके बाद फर्स्ट टारगेट ये आपको देखो 34,844 का मिला, उसके बाद और नीचे आ गया। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, आप इसको आराम से यूज करिए। देखिए ये वाली डॉजी भी बिल्कुल लेवल पे बनी हुई है, इसके हाई के ऊपर ही बाय बनता। अगर कंटिन्यूएशन आता तो इसके हाई के ऊपर आता, वो नहीं हुआ और यहाँ पर आपको फिर दोबारा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली और एंड में भी ये आपको प्रॉफिट दे गया। यहाँ पर जाते जाते एक ये छोटा सा शॉर्ट करवाया इसने आपको 34,780 के पास, और वहां से ये 34,696 आ गया, फिर 100 पॉइंट आपको दे गया। फिर आप देखिए अगर यही लेवल आपने मार्क कर रखा था तो जैसे इसका ब्रेकआउट आया तो वापस ऊपर चला गया। तो बाजार सिर्फ और सिर्फ इस हॉल्ट पे ही काम करेगा। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर हम ट्रैप हो गए, हमारे को डॉजी, एक्चुअली डॉजी तो यहाँ बनी हुई थी लेकिन फिर उसके बाद एक सीरीज ऑफ डॉजी बन गया। तो हमने अगर यहाँ पर भी एक्चुअल डॉजी के हिसाब से भी 475 के ऊपर अगर हमने बाय करा तो ये 475 से 550 आ गया, 90 पॉइंट ये आपको दे गया था। अगर आपने फिर भी इस वाले डॉजी को छोड़ के यहाँ पर कहीं पर बाय करा 35,481 पे, तो सर फिर तो आपको आराम से 90 पॉइंट फिर दोबारा दे गया था। ठीक है, तो ये मार्केट चलेगी ही सिर्फ डॉजी टू डॉजी। ठीक है, ये डॉजी बना यहाँ पर, आपको इसने बाय करवाया 35,289 के ऊपर, 289 से चला गया जी 327, और इसका जो लो था वो 220 था। तो 220 को जैसे इसने ब्रीच आउट करा, जो कि ये डॉजी बन गया, तो आप यहाँ से अगर यहीं से एंटर करते हैं या फिर आप कहते नहीं इसका लो ब्रेक हो 220 का, तो 220 का जब लो ब्रेक हुआ तो ये नीचे आ गया बाजार। तो ये लेवल टू लेवल बाजार मूव करेगा, लेकिन हमें कब उस लेवल में एंटर करना है वो हमें डॉजी कंफर्मेशन देगी। जैसे देखिए अब ये पूरा मूव आया पूरे दिन में, हमने कोई काम नहीं करा इस पूरे मूव में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे को कोई भी डॉजी किसी भी लेवल के आसपास नहीं मिली, तो हम काम नहीं करेंगे। जब हमारा लेवल हमें नहीं काम करवा रहा तो हम काम नहीं करेंगे। इस दिन भी हम कहीं पर काम नहीं कर पाए। ठीक है, तो जब आपको काम करने का मौका मिलेगा तभी हम काम करेंगे, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। अब देखिए ये बाजार नीचे गिरता गिरता आया, यहाँ बनी एक छोटी सी डॉजी, इसका हाई था 34,758 और ऊपर का हाई था 8,808। नहीं, मैं काम नहीं करूंगा, बहुत दूर है। अगर थोड़ा सा पास होता, 5-10 पॉइंट का डिफरेंस होता तो मैं काम कर लेता। तो ये काम भी हमने नहीं करा। तो आपको बस ऐसे ही बैक टेस्ट करते जाना है और देखना है, अगर आपको काम करने का कहीं पर मौका मिले। इस दिन भी आपको कोई काम करने का मौका नहीं मिला। जब काम करने का मौका हमें मिलेगा हम सिर्फ तभी काम करेंगे, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। देखिए यहाँ काम करने का मौका मिला, यहाँ काम करने का मौका मिला, यहाँ काम करने का मौका मिला, यहाँ काम करने का मौका मिला। जब जब मिल रहा है तब तब काम करेंगे, जब नहीं आ रहा तो हम काम नहीं करेंगे। बहुत सिंपल से रूल्स बना के काम करिएगा। देखिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से बनी टॉप से 3740 के नीचे, 3740 से ये आ गया 36,907। ठीक है जी, आपको आराम से काम मिलेगा। जब आपका ट्रेड बनेगा तो आपको प्रॉफिट बनेगा। ये देखो ये वाला ट्रेड भी मिला आपको सुबह सुबह ही, ये मिला 37,040 के नीचे और वहां से ये 36,925 आ गया। अगेन आपको आराम से देगा ये 100 पॉइंट का मूव। तो जब जब आपका मूव बनेगा हम सिर्फ और सिर्फ तभी काम करेंगे, नहीं तो हमने काम करना ही नहीं है। ये देखिए ये ऑलमोस्ट यहाँ पर एक डॉजी का बन रहा था ये सिनेरियो, तो आप यहाँ पर 36,740 के ऊपर भी अगर इसको बाय करते तो आपको ये प्रॉफिट बन जाता। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, मेरे कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल रहते हैं, मैं ज्यादा
टफ कॉन्सेप्ट नहीं देता। टॉप पे डॉजी, बाजार नीचे, ठीक है, बॉटम पे डॉजी, बाजार थोड़ा सा रिट्रेसमेंट। तो ये चीज बस आपको अप्लाई करनी है। और मैंने डॉजी को ही क्यों चूज करा है ये मैंने इंग्लिश वाली वीडियो में बताया था, मैं हिंदी में भी एक बार आपको बता देता हूँ। डॉजी का मतलब है जब जहां पर दोनों मतलब बायर्स और सेलर्स इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। अब बायर सेलर इक्वल क्वांटिटी में, तो इसके बाद कोई तो जीतेगा ना, या तो वो बाइंग साइड पे लेके जाएंगे मार्केट को, या फिर सेलिंग साइड पे लेके जाएंगे। तो इसलिए ये कैंडल हॉल्ट है, और हॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं इसी हॉल्ट का वेट करता हूं, लेकिन इस हॉल्ट को हमें देखना कहाँ है? इस हॉल्ट को हमें कैमरिला लेवल्स पे देखना है, पिवट्स पे देखना है। ये हॉल्ट बहुत जगह बनते हैं, ये हर जगह बनेंगे। यहाँ पर हॉल्ट बन गया, ठीक है, यहाँ पर हॉल्ट बन गया, लेकिन ये हॉल्ट मेरे किसी काम का है या नहीं है? तो उस हॉल्ट को समझने के लिए आपको उसके साथ कैमरिला पिवट को ऐड करना है। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही रहेगा। बस आप सबसे छोटी सी एक फीस है मेरी, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियोस टाइम पे मिलती रहे। सो हैप्पी न्यू ईयर। और ये न्यू ईयर धमाका स्ट्रेटेजी आपके लिए, आप सबके लिए एक इंट्राडे स्ट्रेटेजी जो आप सब बहुत टाइम से मांग रहे थे, तो वो मैंने अभी ऐड करी है। सो प्लीज वीडियो पूरी देखिएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।